This conference will now be recorded. श्रेया दीदी कैसा है? कौन सी दुनिया में रहता है? चलो जी, तो last time we started with group 16. This table has been discussed, and let us start with the oxygen, one of the most important element. और सुन अन्य important element जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, इनके मेथड ऑफ प्रिपरेशन की समरी बनाओ अपने हाथ से, ठीक है? ओके सर। जो एनसीईआरटी वाले मेथड हैं उनको हाईलाइट कर दो और बाकियों को भी जरूर करो बेटे, फायदा होगा। Oxygen exists in oxygen 16, 17 and oxygen 18, and 16 is going to be most abundant. So 18 oxygen is radioactive and it is used in studying the mechanism of organic reaction and other tracer technique. You people remember that if we talk about this is going to be 18 oxygen, and अगर आप इसके ऊपर अल्कोहल डालोगे तो हमें radioactivity was found in water. This concluded that acid की तरफ से it is going to be the nucleophilic substitution reaction है और इधर से the acidic property was used. नंदनी समझ गया? In molecular state, it exists as O2 and it is known as dioxygen, or simply we are going to call it oxygen. अन्य काफी important है method of preparation of dioxygen. You can heat KNO4, KClO3 or KNO3, that is going to be producing oxygen. Expect a question, which of the following is our method of preparation of oxygen? So you must be having a proper summary for important elements, not for all. Okay, by heating dioxide, peroxide and other oxide like mercuric oxide, silver oxide, अगर आप इसको heat करो तो हमें silver and mercury मिल जाता है. MnO2 को heat करो, we are going to get a mixture of oxide Mn3O4. Do you people remember? This is the way you should be revising. It is a mixture of MnO2. The lead oxide is going to convert into +2. The barium oxide is going to be convert into barium oxide and O2. Barium BaO2, barium oxide. So that is the way we are going to produce oxygen by decomposition of these. Laboratory method, the thermal decomposition of KClO3, वही जो पीछे पड़ा. KClO3, MnO2 की presence में as a catalyst produces KCl and oxygen. Similarly, the peroxide on hydrolysis are going to produce base and oxygen. Dioxygen can also be produced by KMnO4, sodium peroxide, sulfuric acid. ये तो K2SO4, Na2SO, MnSO4 and water, and this is going to give you oxygen. All of these compounds are going to be good oxidizing agent because जहाँ पे भी oxygen produce हो रही है तो that can be an oxidation का method हो सकता है. Industrial preparation, I think we read it in the preparation of nitrogen from air. Daman, Emmy, कुछ याद आया? So that was a way we have already done it. So better kindly read it yourself. It's a colorless, tasteless, no smell, and it is going to be liquefied to a pale liquid. मैं किसी important चीज के ऊपर आगे stress करने वाला हूँ. The dioxygen is quite stable in nature. The bond dissociation energy is very high, next only to the nitrogen. मतलब भगवान ने आपके पास ऑक्सीजन तो बहुत सारी दे दी है, बट उन्होंने उसकी जो बॉन्ड एनर्जी है वो बहुत ज्यादा कर दी है. तो नॉर्मली O2 does not react under ordinary condition. However, it react at higher temperature. But once the reaction start, it proceeds on because
ऑक्सीजन जब किसी के साथ कंबाइन करता है, ऑक्साइड बनाता है, इतने स्टेबल बॉन्ड्स होते हैं कि वो अपने आप ही एनर्जी प्रोड्यूस करते रहते हैं, so the reaction can continue at its own. Because the chemical action of oxygen are exo and heat produced during the reaction, spelling गलत है, is sufficient to sustain the reaction. And it is neutral, having no action on the blue or red litmus. I hope no need to remember it. कार्तिक, सोडियम कैल्शियम के साथ ऑक्साइड बनाएगा, सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट, कैल्शियम की ऑक्सीडेशन स्टेट तो कोई भूल ही नहीं सकता है. However, sodium also forms peroxide. Magnesium forms MgO, and ये आपकी पटाखों की दुनिया में बड़ा काम आता है, बिकॉज मैग्नीशियम जब जलता है तो वो बड़ी ब्राइट फ्लेम यूज करता है. आयरन Fe2O3, एल्यूमिनियम Al2O3 बनाता है. इसमें से Al2O3 is a very very stable compound. Therefore, तो जब एल्यूमिनियम के साथ ऑक्सीजन का रिएक्शन होता है, ये इतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता है कि ये वेल्डिंग पर्पसेस के काम आता है. गोल्ड एंड प्लैटिनम, noble metals, do not combine with dioxin. That is the reason we use them in ornaments. The ornaments में use किया जाता है. चल सकते हैं बेटे? See, with hydrogen chloride, HCl and oxygen, the oxygen is going to displace the chlorine. You will be getting क्लोराइड आयन से क्लोरीन और साथ में वाटर मिल जाएगा. कार्बन डाइसल्फाइड ऑक्सीजन के साथ, इनको याद करने की जरूरत नहीं है, जस्ट रीड करो. CO2 SO2, जिंक सल्फाइड प्लस O2, जिंक ऑक्साइड एंड SO2 का ऑक्साइड हो जाएगा बच्चों. दिस इज इजी टॉपिक, तो आई एम गिविंग यू दिस फॉर रीडिंग पर्पस. आज ठीक है गुड़िया? तो आज आसान टॉपिक चल रहा है, तो हम आगे बढ़ सकते हैं बेटे. ऑक्सीजन. Yes, sir. चलो जी, नाउ दिस इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक, द टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स. ऑक्साइड्स बहुत ज्यादा प्रकार के होंगे. फर्स्ट इज एसिडिक ऑक्साइड. These oxide combine with water to produce acid or combines with base to produce salt. I think enough has been practiced about that. Do you people remember? Nandini, oxidation state same होती है बेटे. जब भी पानी डालता है तो जो इसके जो ऑक्साइड से जो आपके पास एसिड्स बनते हैं, the oxidation state is always going to be same. And since these are acidic oxide, तो ये पानी के साथ मिलके क्या बनाएंगे? बेदी SO2. अगर पानी डालेगा तो क्या मिलेगा? सल्फ्यूरस एसिड. वेरी गुड. और अगर इसके ऊपर वाटर डालेगा, सॉरी NaOH डालेगा, तो गुड़िया क्या मिलेगा? सॉल्ट. और अगर SO3 के ऊपर पानी डालेगा तो क्या मिलेगा? H2SO4. सल्फ्यूरिक एसिड. वेरी गुड बेटे. इसके ऊपर अगर पानी डालेगा तो क्या मिलेगा? ये Na2SO4. तो क्या समझ पाते हैं? अगर डायरेक्ट इसका रिएक्शन इसके साथ कर देता या इसका रिएक्शन इसके साथ कर देता तो प्रोडक्ट बना पाओगे बेटे? फॉर एग्जांपल P4O10, अगर आप इसके ऊपर पानी डालेंगे तो क्या विजुअलाइज कर सकते हैं? H3PO4. तो अगर इसके ऊपर NaOH डालेंगे बेदी तो क्या मिलेगा? और पानी तो भगवान का प्रसाद है, ये तो हर जगह पे पैदा हो जाता है. ये ऑक्साइड के वाटर के रिएक्शन से आपको ये तो मिलेगा ही मिलेगा. ठीक बेटिया? तो एसिडिक ऑक्साइड. The second is basic oxide. वैसे which react with water to form base or which react with acid to form salt. Periodic table में, if this is the periodic table,
लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास बेसिक और इधर आपके पास एसिडिक ऑक्साइड आते हैं। बीच में आपको एम्फेटेरिक ऑक्साइड्स आर गोइंग टू बी ऑब्टेन्ड। फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम, आयरन, सोडियम, आयरन के ऑक्साइड अगर पानी के साथ रिएक्ट कराओ तो बेस मिलेगा, अगर एसिड के साथ रिएक्ट करो तो आपको सॉल्ट मिल जाएगा। पोटाशियम, कैल्शियम, बेरियम, the left hand side, magnesium, and these are going to be the basic oxide. Amphoteric oxide which show acidic as well as basic character. मुझे लगता है कि अगर आपको मैंने बड़ी देर पहले कहा हुआ है, अगर आप लिस्ट बना रहे हैं तो you will be rewarded. Amphoteric oxide, these are going to react दोनों with the acid and base. For example, Al2O3. For example, SiO2, zinc oxide, beryllium oxide, many more to come. These are going to be amphoteric oxide. ये आपको बीच में कहीं पे मिलते हैं, amphoteric oxide. Question: neutral oxide, the oxides which neither react with acid or bases. N2O, CO, NO, neutral. Water is an amphoteric oxide. Do not forget. But water is not a neutral oxide. Neutral oxide जो दोनों के साथ रिएक्ट नहीं करता है, amphoteric oxide जो दोनों के साथ रिएक्ट करता है. On moving from left to right, as I just said, the nature of oxide changes from basic to amphoteric to then acidic. ये बीच में आके आपको टिन और एंटीमनी के ऑक्साइड, एल्यूमिनियम के ऑक्साइड, ये आपको मिलने वाले हैं एम्फोटेरिक. इधर आते आते तो एसिडिक कैरेक्टर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है. सो दीज आर गोइंग टू बी स्ट्रांगली एसिडिक. Apart from that, we have many other type of oxides which can be classified as the normal oxide, like magnesium oxide, water, etc. इसमें बच्चों ऑक्सीजन -2 में एग्जिस्ट करती है. Polyoxide, these contain oxygen atom more than permitted by normal valency. गड़बड़ी इनकी रहती है ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में. For example, you have peroxide, H2O2. Here, the oxidation state has been found to be -1. You can have barium peroxide, you can have the lead peroxide, etc. The oxidation state different रहती है. Superoxide, here the O2 minus में रहता है. Here O2 -2 में रहता है. Suboxide, N2O. सर सुपर ऑक्साइड की हाफ नहीं आएगी? तो मिला के तो गुड़िया नेगेटिव आएगी ना, मैंने कंपाउंड की फॉर्म में लिखा ना. नहीं, ऑक्सीजन की हाफ. ऑब्वियसली 2 के ऊपर मिला के आपके ऊपर -1 है, बट O2 के ऊपर आपके पास तो -1 ही है ना. यहाँ पे भी मैंने यही लिखा था, यहाँ पे भी मैंने यही लिखा था बेटे. ओके. बाकी अगर तुम्हें इसमें लिखना है कि एक O के ऊपर, तो वो तो वही चीज है ना. Isn't it the same thing? यस सर. The suboxide, N2O. This is the suboxide. C3O2. अपने आप में ही ये क्वेश्चन है अश्य, C3O2 में कितने सिग्मा कितने पाई बॉन्ड है. The C3O2. Mixed oxide, it is PbO, PbO2. Fe3O4, FeO, Fe2O3. This is 2MnO, MnO2. So these are type of oxides which may be asked. We never know कहाँ पे आएगा, but हाँ सारे के सारे आपके काम के हैं. Oxides ढेरों प्रकार के हैं, basic, acidic, neutral, amphoteric, the peroxide, the superoxide, the suboxide and mixed oxide. हिमांशु आगे चल सकता हूँ. So हिमांशु,
The next important thing is the ozone, probably the lifesaver molecule which the nature has given to us. And again, it's going to be a powerful oxidizing agent. Ozone, it is formed naturally in the upper atmosphere by the action of UV rays on oxygen. इस रिएक्शन को ध्यान से देखो. 3O2 gas is converting into 3O3 gas. Sorry, अब ये ठीक हो गया. तो इस वक्त डेल्टा Ng, that is product minus reactant, कितना है बेटे? -1. तो गैसियस मोल्स क्या कर रहे हैं? डिक्रीज कर रहे हैं. अगर गैसियस मोल डिक्रीज कर रहे हैं, इट इज 3O2 गैस, 2O3 गैस. तो एंट्रोपी क्या कर रही है? नेगेटिव. और दूसरा, इसके लिए डेल्टा H क्या पाया गया है? पॉजिटिव. सो इसका मतलब इस रिएक्शन के लिए डेल्टा G क्या होगा? नॉन स्पॉन्टेनियस. अब नॉन स्पॉन्टेनियस को करवाने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, राइट, is needed, or that is the work done by ultraviolet photon. ये नॉर्मल कंडीशन में ये काम नहीं होता है, ये बड़ी मुश्किल से होता है. we can supply, we have to continuously supply energy, so this is going to be a very difficult reaction to happen. Therefore, the ultraviolet rays which are harmful to human beings are absorbed by oxygen to form ozone. भगवान ने कुछ ऐसा जुगाड़ कर दिया कि वो हमारे पास अगर यूवी नीचे आता तो कार्बन कार्बन बॉन्ड की जो एनर्जी है वो उसके साथ यूवी के फोटोन के साथ मैच करती है. And there we get free radicals. Free radicals are going to be source of tumors, or what you call as cancer in the easy language. So nature has made some jugaad where it is going to absorb the UV rays, and at the same time उसने हमें थोड़ा सा यूजफुल चीज ओजोन देना शुरू कर दिया. अब इंसान नेचर के काम में पंगा कैसे ना ले, है ना? तो हम लोगों ने ये ओजोन को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया. जब ओजोन को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया तो नेचुरल इक्विलिब्रियम वाज डिस्टर्ब्ड. द यूवी रेज स्टार्टेड रीचिंग the earth's surface, and that led to a spontaneous increase in the cases of the skin cancer. So we are suffering from that. अभी पढ़ते हैं इसको. The layer of ozone thus formed also prevents the remaining ultraviolet rays to reach the earth's surface. पहली बात, ऑक्सीजन यूवी से करके ओजोन बनाता है, और जो ओजोन बनती है वो और ज्यादा यूवी को नीचे आने से रोकता है. On the earth, ozone is prepared by passing the silent electric discharge through pure, cold, dry oxygen in specially designed apparatus called as ozonizer. Ozonizers is like your tuning fork. यहाँ से pure and dry oxygen डाला जा रहा है, यहाँ से ozonized oxygen, because percentage conversion ज्यादा नहीं है. हमारे पास जो गैस बाहर आएगी वो O2 plus O3 आएगी. These are going to be electrical, हमने इलेक्ट्रोड्स डाल दी हैं. तो इनमें से अभी बताता हूँ साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का क्या मतलब होगा. अगले पेज पे हमें ये रिएक्शन करवा के देगा, O2 को O3 में कन्वर्ट करेगा. The purpose of silent electric discharge is sparkless electric current is to produce less heat, क्योंकि इसको हीट से प्रॉब्लम है. द मोमेंट इसको हीट ज्यादा निकलेगी, ये डिकम्पोज करके वापस आने की तैयारी में बैठा हुआ है. सो ओजोन को बनाने के लिए वी नीड टू हैव द प्योर, राइट, कोल्ड, ड्राई ऑक्सीजन
and will be needing silent electric discharge के करंट भी मिले और करंट से जो स्पार्किंग होती है that is not required. This is going to be what we have read. एक बार पढ़ लेना, आपकी NCERT ऐसा क्वेश्चन पूछती है, discuss the conditions required for giving the best yield of ozone. आगे जा सकता हूँ बेटे. Ozone is a pale blue gas having एक अजीब सी pungent smell है. It is heavier than air. Air की जो vapor density है that is 28.8 by 2 14.4 है, जबकि जो हमारी ओजोन की vapor density है molecular weight divided by 2 24 है. Therefore, it is about 1.5 times heavier than air. Just read it. Slightly soluble in water, more soluble in organic solvent. It liquefies to a deep blue liquid at very low temperature, which can be solidified to black solid at 80.6 Kelvin. You cannot memorize this type of information. You should not. ये तो एग्जामिनर अगर घर से लड़के ही आए तो मैंने आज बच्चों को बेवकूफ बनाना ही बनाना है, then he can ask such type of question. In contrast to dioxin, which is paramagnetic, oxygen is diamagnetic. This type of information you can keep in your mind, class 11th molecular orbital theory. O2 was having pi 2p x star 1, pi 2p y star 1. So it was paramagnetic. Ozone is neutral. Pure ozone decomposes spontaneously. You can understand. ओजोन से ऑक्सीजन की तरफ रिएक्शन क्या है? स्पॉन्टेनियस है, तो वो रिएक्शन आसानी से हो जाएगा और हमें ओजोन की डीकंपोजिशन मिलने वाली है, जबकि आप ओजोन को बनाने के लिए कोशिश करें तो मुश्किल है. क्या बोला बेटा? तो अगर ओजोन हेवियर है मतलब, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मैं उम्मीद कर रहा था. तो आप कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे हैं हमारे से कि अगर ओजोन हैवी है तो वो नीचे क्यों नहीं आती है? एयर या गैस की एक प्रॉपर्टी है व्हाट? डिफ्यूजन. और इसकी जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है वो 3/2 RT के बराबर है, याद है? सो वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, वो मास का फंक्शन नहीं है. तो जो ओजोन ऊपर बनी, ऊपर टेम्परेचर लो टेम्परेचर था, अब वो धरती के सरफेस की तरफ आई तो इसका एक कुदरत ने इक्विलिब्रियम सेट करके रखा हुआ है, वो O2 में कन्वर्ट हो गई, नीचे टेम्परेचर ज्यादा हाइट, और उसके बाद वो फिर ऊपर की तरफ चली गई. सो दैट इज अ रीजन कि ओजोन बेशक हैवी है बट वो हाई टेम्परेचर पे डिकम्पोज कर जाती है, किसमें? O2 में. सो नीचे हमें ओजोन की बिल्कुल भी क्वांटिटी नहीं मिलती है अनलेस एंड अनटिल आपकी लेबोरेटरी में चले बेटा. सो यू हैव सीन वो धूप और अगरबत्ती जो हम अपने घर में या कई मंदिर गुरुद्वारे में देखे हैं, सो दैट इज धूप. व्हाट इज गोइंग टू हैपन? वो डिफ्यूज कर जाएगा तो वो मिक्सअप हो जाएगा. दिस इज गोइंग टू बी एन इक्विलिब्रियम मिक्सचर होगा. ओजोन इज पावरफुल. क्या खा रहा है? ऑक्सीजन. लंच कर रहा है? एंजॉय कर, सेवर कर, थोड़ा म्यूट कर दे, बाद में बात करता है, ठीक है? एंजॉय कर बेटे. तो आज सुनता रहे, बोल मत. तो पीबीएस, पीबी तो +2 में बैठा है, सल्फाइड -2 में सल्फर चला गया है +6 में. So similarly रतन, कैडमियम सल्फाइड goes to सल्फेट. रतन ऐसे याद कर सकता है, सल्फाइड किस में जा रहा है गुड़िया? -2. HCl react with ozone to form water chlorine. यहाँ पे कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है?
the chloride ion is being oxidized. So देख सब में गुड़िया ऑक्सीजन तो पैदा होगा ही होगा, क्योंकि देखना तेरा ये किस में टूटेगा, ओ ऑक्सीजन एंड O2 में, नेसेंट ऑक्सीजन एंड O2। ऑक्सीजन उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, क्योंकि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी ज्यादा है। यस सर। गेन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज Cl2। गेन ऑफ गेन ऑफ ऑक्सीजन को ऑक्सीडेशन नहीं बोलता शेर खान। हाँ जी। तो नाइट्राइट किस में कन्वर्ट होता है गुड़िया, नाइट्रेट में। रेट में। आयोडाइड किस में कन्वर्ट होता है, आयोडीन। राइट, जैसे क्लोराइड था और सिर्फ यहाँ पे K+ था, तो यहाँ पे OH नेगेटिव is going to be formed, क्योंकि पोटेशियम मिलेगा, पोटेशियम इमीडिएटली is going to react with water to form but KOH। सुन, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है और इजी है, अगर तू आराम से इसको देखेगा तो याद कर सकता है। फेरस गोes to फेरिक में गुड, +3। फेरस goes to फेरिक। पोटेशियम मैंगनीज, ऑक्सीडेशन स्टेट बताएगा, मैं भूल गया। +6 +7 पर I2 मैग्नेट goes to +5 +5, +7 में नहीं जाता। Yes, sir. सल्फर goes to -2 ना, वो Plus सल्फाइड था, अच्छा जी। सल्फाइड goes to सल्फेट, और ये किसके बराबर होगा, +6 के। ओके। क्योंकि सल्फर goes to the SO3, SO3 पानी तो वहां पे है ही है, उसके साथ मिलके क्या बना देगा, the sulfuric acid is going to be formed। तो अगर आप जनरली एनालाइज करते हैं, फास्फोरस P4 से कहा जाएगा, PH3PO4। आर्सेनिक उसी फैमिली का मेंबर है, जैसा Yes, sir. H3PO4 H3SO4। H3ASO4, जैसे स्टिबाइन है वो भी उसी फैमिली का मेंबर है। Yes, sir. H सिल्वर 0 सिल्वर से ऑक्साइड। सिल्वर +1 में जाना। देख, अगर इंपॉर्टेंट ना होती तो मैं रीड करके आगे निकल जाता हूँ या तुम्हें दे देता हूँ, बट मैं वहीं पे रुकता हूँ जहां पे इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है भैया, तो पढ़ लेना। Yes. अब एक मरकरी का टेस्ट डिस्कस करेंगे। मरकरी ओजोन के साथ मिलके मर्क्यूरस ऑक्साइड बनाती है। क्या बनाती है बहना, मर्क्यूरस ऑक्साइड। ये जो होता है ये रिमेन्स, पूरा तो बनता नहीं है, डिसॉल्व्ड इन मरकरी में रहता है। ड्यूरिंग दिस रिएक्शन द मरकरी loses its meniscus and starts sticking to the sides of the glass vessel. Normally mercury does not stick to the glass and it is used in thermometer, but इस रिएक्शन में जो मर्क्यूरस ऑक्साइड बना है वो मर्करी के अंदर डिसॉल्व कर जाता है and start sticking to the glass surface. This is known as tailing of, yes गुड़िया, मर्करी, चिपकना शुरू हो जाना मर्करी का, उसको टेलिंग ऑफ मर्करी बोलते हैं। समझ आएगा? Yes, तो sir. ओजोन, any oxidizing agent is bleaching in action, is bleaching in action, because this is going to give you O2 plus ozone. ओ गलती से बोल गया गुड़िया, O2 plus nascent oxygen. Nascent oxygen Yes, will sir. oxidize the colored material, so it acts as a bleaching agent for vegetable coloring matter. Ozone bleaches indigo, ivory, litmus, delicate fabric. सुन, तूने
नंदनी, मेरे को हफ्ते में एक बार जरूर फोन करना है, ठीक है? बगैर मतलब के, सर जी मैंने ये कर लिया, अब ये करना, कैसे करूं, क्या करूं, कब करूं। रतन याद रखना ये चीज। आन्या तुमने भी, बाकी सारे भी प्लीज करते रहो, तो मुझे रेगुलरली फोन करो। ओके तो सर। जैसे ये कार्तिक, बहुत कम लोग करता है, कार्तिक करता है, आज कभी कभी मेरे से बात करती है, तो कीप ऑन टॉकिंग बेटे। फॉर्मेशन ऑफ ओजोनाइट छोड़ दूं बच्चों? बिंदल किया हुआ है? करें CCl2 डोंकी यस सर। क्या बनता था? ओजोनाइट, हाँ जी। एल्डिहाइड, कीटोन्स वगैरह बनते, वो मंदिर जैसा कंपाउंड एक बन जाता था। हाँ जी। बिंदल बात सुन जरा मेरे से ध्यान से, इधर देख। बिंदल, एक है O2, एक है O3, एक है H2O2, तीनों क्या है बिंदल? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसके बीच में डबल बॉन्ड होता है दोस्त, इसके बीच में रेजोनेंस की वजह से कितना बॉन्ड होता है? एवरेज 1.5। 1.5। और H2O2 में कितना बॉन्ड होता है? 1। क्वेश्चन मिलेगा तुम्हें, रेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ से बॉन्ड लेंथ, O2, O3, H2O2। रतन ठीक है? मी, अरमान, अर्श क्या समझा? क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड है बेटे, ठीक है सर। इसमें बॉन्ड ऑर्डर 1.5, इसमें बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 1, तो वो लंबा 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 बड़ा होता चला जाए। अरमान सिंह, he can also ask a range in increasing order of the oxidation action। तो अरमान सबसे पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा? सर O3। H2O2। ऑक्सीजन अच्छा ऑक्सीजन सर। बॉन्ड देखना सबसे कमजोर है, तो हम्म। weakest bond will produce oxygen most easily। ठीक बेटा? ओके सर। With peroxide, ozone is going to produce O2। देख H2O2 क्या पैदा कर रहा है? H2O प्लस O। O3 क्या पैदा कर रहा है? O2 प्लस O। और ये दोनों मिलके क्या बना देंगे? एक और O2 का मॉलिक्यूल। यस सर। समझा शेखर? बेरियम पेरोक्साइड क्या देगा? ऑक्सीजन। और O3 क्या देगा? ये दोनों मिलके क्या बना देंगे? O2। यस सर। और सुन, ये स्ट्रक्चर आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है इंक्लूडिंग बॉन्ड लेंथ। मेडिकल वाले इस स्ट्रक्चर का जरा ध्यान कर लेना। तुम्हें ये पॉजिटिव नेगेटिव समझ आ रहा है अरमान सिंह? नहीं सर। अच्छा सर, आ रहा है थोड़ा थोड़ा। कैसे थोड़ा थोड़ा? नहीं तो पूरा आएगा, ये नहीं आएगा। ऑक्सीजन दिख रही है? यस सर। ये सामने से ऑक्सीजन एटम आ गया, तो हम्म। इसके ऊपर लॉन पेयर देख पा रहा? यस सर। इसको हाथ नहीं लगा, इधर देखिए, ये 2 इलेक्ट्रॉन देख पा रहा? यस सर। इनमें से एक इलेक्ट्रॉन उठा के इसको मिल गया। ऐसे बॉन्ड को क्या बोलते हो? डेटिव बॉन्ड। नेगेटिव बॉन्ड। किसका नुकसान हुआ?
इसका बीच वाले इसका का, गेम। तो उसका अब राइट वाले का। पूरा समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा? आ रहा है सर। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव क्यों बनाया गया, समझ आएगा शेरखान? यूजेस ऑफ ओजोन, होमवर्क रहेगा, you can read it. It is used for purifying air of crowded places such as cinemas, underground railway, auditorium, mines, and for destroying objectionable smell in slaughterhouse. जैसे अंडरग्राउंड ट्रामवे है तो हम उसको स्टरलाइज तो कर नहीं सकते, इंसेक्टिसाइड थोड़ा स्प्रे करोगे, तो उनको क्या करेंगे, वो दोनों तरफ से, सब तरफ से एक बार बंद कर देंगे और उसके बीच में ओजोन छोड़ देंगे। तो व्हाट इज ओजोन गोइंग टू डू? गैस है तो गैस तो ऊपर उठेगी, तो क्रीवाइसेस में या छुपी हुई जगह पे जहां पे कोई वायरस या बैक्टीरिया या कोई फंगाई बैठा था वो उसको ऑक्सीडाइज करके खत्म कर देगा। दैट इज द ओजोन के फायदे, बाकी आप पढ़ेंगे, ठीक? द सर एक ओजोन, क्रिमिनल भी यूज कर सकते हैं? नहीं वो कैसे करेगा यार? अच्छा। क्रिमिनल वो चीज यूज करेगा बेटे कि जो उसके लिए इजी हैंडल करने वाली हो, इसको वो पहले उसका खुद का ही नुकसान हो जाएगा। तो नो, पर तेरे बिल्कुल दिमाग सर। में क्रिमिनल वाली स्टोरी कहां से आ गई? तुम्हें तो उल्टी तरफ बैठना है, ठीक है? ठीक है और सर। सुन, इसको होमवर्क दे दूं? दे दो सर। राइट, आज बता रहा हूं गुड़िया, रियली इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑफ एनवायरनमेंट की जो हम वॉट लगा रहे हैं। सो दिस इज गोइंग टू बी, प्लीज, दैट इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ओके ओए सर। बेदी पढ़ लेगा? यस सर। तो बेदी भूलना मत। सो हम लोगों को या अफ्रीका वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता है, ज्यादा नुकसान नहीं होता है, होता तो है ओजोन का, बट द ब्रिटिशर्स एंड अमेरिकन्स एंड द कैनेडियंस जो कि नेचुरली उनके स्किन के अंदर वो एक पिगमेंट नहीं है जो तुम बायोलॉजी में पढ़ते हो, है ना, जिससे उनका कलर मेलानिन, यस। हाँ लाइट रहता है, तो वो हमें नेचुरली कैंसर से बचाती है। तो उन लोगों को तो ये सीरियस इफेक्ट है, काफी उनके लिए ये खतरनाक है। सो आई हैव ट्राई टू कंपाइल द साइंटिफिक डाटा कि ये हम ओजोन का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। 1981 में पहली पिक्चर लेफ्ट हैंड साइड ऊपर की तरफ, ये काफी कम था, अब ये डार्कर होता चला जा रहा है और ये और बढ़ गया है। कुछ स्टडीज के मुताबिक इंसान ने जैसे जैसे नीचे इन्होंने पढ़ लिख के काम ठीक किया है, आज के दिन में हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन यूज नहीं करते हैं, हम रेफ्रिजरेशन में भी अमोनिया जैसे कंपाउंड यूज कर रहे हैं। सो उससे अर्थ ने अपने आप को थोड़ा रिपेयर करना शुरू किया है, बट यू पीपल आर रियली इन अ सीरियस ट्रबल आफ्टर 10 years अगर ये पॉलिटिशियंस ने अपने आप को ठीक नहीं किया। संभाल के रखना। Pure ozone, pale blue gas, dark blue liquid, violet black solid at different temperatures. समझ आएगा? यस सर। Ozone has a characteristic smell. थोड़ी concentration में it is harmless. But if the concentration rises above 100 parts per million, the breathing becomes uncomfortable, resulting in headache and nausea. Ozone is thermodynamically unstable. याद आ गया गुड़िया? O3 यस सर। will be converting into O2 gas. इस वक्त डेल्टा जी यहाँ की तरफ क्या है? नेगेटिव है, क्योंकि एंट्रोपी भी फेवर कर रहा है और the delta H is also negative. Since its decomposition into oxygen result in liberation of heat and increase in entropy. These two effects reinforce each other, resulting in large negative delta G. It is not surprising that high concentration of ozone can be dangerously explosive. अगर आपके पास बेदी 2 ओजोन के मॉलिक्यूल हैं तो STP पे
22.4 into 2 लीटर वॉल्यूम होगा। Yes, sir. Yes. अब मौका मिलने पे गुड़िया ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? तीन मॉलिक्यूल्स में। So therefore what will happen? Expansion हो जाएगा volume. और एक्सपेंशन होने से क्या होगा? Explosion. That is the heart of every explosion. Important. पहली बात कर. Due to the asani with which it liberate atoms of nascent oxygen, it act as a powerful oxidizing agent. For example, अभी हमें नंदनी ने बताया सल्फाइड को कहाँ भेज देता है? सल्फेट। आयोडाइड को कहाँ भेज देता है बेटिया? KOH, I2 and O2। ये रिएक्शन समझ आ गया? Yes. When ozone react with excess of potassium iodide, second वाला reaction, potassium iodide, ozone plus water, right? Buffered with borate buffer, pH maintain करना पड़ता है। Iodine is liberated plus I2, which is titrated against hypo Na2 S2 O3, forming what? NaI. Na2 SO O7। So हम इसके NV से हम ओजोन कितनी निकली थी उससे अंदाजा लगा लेते हैं। This is the म्यूट कर दें quantitative method for estimating the ozone gas. This is going to be your NCERT question. You read it. It will be helpful better. Same thing. वही same चीज। दो क्वेश्चन है। Ozone is a powerful oxidizing agent. And how is ozone? आज समझ गया? दमन, Yes, अरमान, sir. ये important है बेटिया। Inorganic ऐसी ही होती है। So it is not going to be a different type of thing. आगे बढ़े शेर खान। Yes, एक sir. बार दोबारा सल्फर से दोस्ती करते हैं। सल्फर एग्जिस्ट इन मेनी फॉर्म। ये सारे सल्फर की फॉर्म है। पिछली क्लास में भी हमने शुरुआत में किया था, बट हम ऑक्सीजन से निकलते हुए सल्फर में पहुंच गए। You will read it, Vidya. Right? You will read it. When I said you will read it, you cannot leave it. For example, ये Okay, देख, sir. ये आपका क्वेश्चन बनेगा। At elevated temperature, S8, S6 convert into S2. Do you remember O2 is paramagnetic? याद है क्या? भूल भाल गया? Yes, sir. Similarly, बेटिया, S2 is also going to be ditto similarly. क्या है? Paramagnetic. हालांकि हम आपको ज्यादा से ज्यादा MO थ्योरी में 20 इलेक्ट्रॉन सिस्टम तक लेके जाते हैं, not even in the JEE advanced way. तो S2 is also going to be similarly the paramagnetic, but it exists as greater than temperature 1000 केल्विन के ऊपर जाके ही ये बनती है बेटिया। ये भी तुम पढ़ोगे। Allotropes of sulfur, they exist in many form। वही जो मैंने पीछे पढ़ाया था, the Yes. S8, S6 की फॉर्म में वो एग्जिस्ट करती है। SO2 सब इंपॉर्टेंट चल रहा है। It is formed by burning sulfur in the presence of oxygen SO2. In the laboratory, it is produced by preparation of the sodium sulfide
विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। गुड़िया ये रिएक्शन तेरा ऐसा भी हो सकता था, जब तुम इसके ऊपर H2SO4 डालते हो तो हमें मिलता है सोडियम सल्फेट प्लस SO2। ओके तो सर। मैंने गलती कर दी है, हमें मिलता है वाटर प्लस SO2, वाटर प्लस SO3, सोडियम सल्फाइड से। इंडस्ट्रियली it is produced as a byproduct of roasting of sulfide ore. All three equations are important. जो तीसरी इक्वेशन है अभी हम सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए यूज करने वाले हैं। The gas after drying is liquefied under pressure, stored in steel cylinders. Can you guess why? Why not ordinary iron और बाकी सी? Because SO2 is acidic, so it will corrode any other material other than steel. So that is why this is going to be stored under inert metal या उसके कंटेनर में। सर ओके सर। पहली बोल लाइन का सर, पहली लाइन का क्या तात्पर्य हुआ? तात्पर्य तूने इतनी सुंदर हिंदी कहाँ से सीखी दोस्त? आई एम प्राउड ऑफ यू। Sulfur dioxide is formed together with a little of sulfur trioxide when sulfur is burnt. इसका तात्पर्य ये हुआ कि हमें SO2 as well as मेरे दोस्त क्या मिलता है? SO3 भी मिलता है, क्योंकि ऑक्सीडेशन है ना। आप ऐसी बात कर रहे हैं कि अगर आप कार्बन को जलाएंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनाना चाहते हैं, ठीक है, कंट्रोल से मैं कार्बन मोनोऑक्साइड बना लूंगा, बट CO2 भी तो मिलेगी ना। यस सर। ये तात्पर्य कहाँ से सीखा भाई? ये दिल्ली वाले ही बोल सकते हैं। सर छोटे कजन की वो ऑनलाइन क्लास चल रही थी तो हिंदी टीचर ऐसे बोलते जा रही थी, क्वेश्चंस पूछ रही थी। तो कान में पड़ा के, है ना। छोटा भाई कौन सी क्लास में है? सर 9th में। शरारती है कि नहीं तुम्हारे जैसा? नहीं सर, वो तो काफी पढ़ाकू है। ओहो, ये तो यार तेरी फिर दोस्ती कैसी होगी? तो जिंदगी में खूब खुश रहा करो, है ना। यस चल सर। आगे देख। सल्फर डाइऑक्साइड इज अ कलरलेस गैस। ये जो दमन है, पीछे मैंने इसको पकड़ा था, किसी पे बैठ के ना शरारतें कर रहा था। अब बताऊंगा नहीं सबके बीच में, तेरे को बताएगा ये फोन करके। सल्फर डाइऑक्साइड इज अ कलरलेस गैस विद अ पंजेंट स्मेल। आप इसको सूंघना नहीं चाहेंगे, एंड इट इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर। क्यों भाई? क्योंकि एसिडिक ऑक्साइड है ना, तो पानी में जाके ये H2SO3 बनाएगा। इट लिक्विफाई एट रूम टेम्परेचर, दमन 2 एटमॉस्फेयर पे, और बॉयल्स बिलो द 0 डिग्री सेल्सियस। अरमान सिंह, ये रिएक्शन समझा? यस सर। इट रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, अभी भी किया थोड़ी देर पहले। NaOH plus SO2 forms Na2SO3। जबकि अगर सोडियम सल्फाइड को तुम आगे रिएक्ट करवा दो वाटर और SO2 के साथ, तो इट इज गोइंग टू फॉर्म द NaHSO3। जो इंपॉर्टेंट से उसको देख लिया कर, जो भूल जाते हैं उसकी टेंशन मत किया कर, बट हाँ तेरे को पता होना चाहिए मेरे दोस्त कहाँ पे पड़े हैं, ताकि क्वेश्चन आने पे आप वापस आ सके। अरमान सिंह, ये लाइन जो मैंने बोल्ड की है, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो अरमान सिंह, अगर NaOH के ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड डालूं तो क्या मिलता है मेरे दोस्त? Na2CO3H2। अच्छा, मेरे को वो लाइन वाटर टन मिल्की की तो कोई क्वेश्चन आती है? सर कैल्शियम ऑक्साइड। कोई भी बोल सकता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को वाटर के साथ अंदर रिएक्ट करा देते हैं तो हमारे पास क्या मिलता है बेटिया? कार्बोनेट बन जाता है, वो सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट, और बाद में क्या बनता है? कैल्शियम बाइकार्बोनेट, है ना। बाइकार्बोनेट, यस सर। बाइकार्बोनेट बनता है। तो उसी प्रकार से SO2
Lime water turns milky with SO2 as well as carbon dioxide. याद रखेगा, जो रिएक्शन आपके कार्बन से होते थे वही रिएक्शन आपके किससे हो रहे हैं बेटे? द सल्फर डाइऑक्साइड से हो रहे हैं। रतन समझेगा? Yes, sir. Reaction of SO2 are very similar to this thing. Sulfur dioxide react with chlorine to form sulfuryl chloride. Sulfur dioxide react with oxygen in the presence of vanadium pentaoxide to form SO3. ये सेकंड वाला रिएक्शन आगे चल के बस कॉन्टैक्ट प्रोसेस में काम आने वाला है। कॉन्टैक्ट प्रोसेस। रतन, ये तेरा एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है। When moist, sulfur dioxide behave as a reducing agent. For example, iron plus 3 is going to be converted into iron plus 2. बहना, ये क्या हो रहा है? रिडक्शन। Reduction. सल्फर प्लस 4 से कहां जा रही है? +6 में। SO2 is going to convert manganese plus 7 into manganese plus 2. +2. ये क्या हो रहा है? आपको Reduction. क्वेश्चन ऐसे आने हैं, गिव टू रिएक्शन वेयर SO2 act as a reducing agent. ठीक है बच्चों, अभी के लिए बेटिया याद मत कर क्योंकि कोई फायदा नहीं होने का। अभी तो बस धीरे से इसको पढ़, स्लोली पढ़, ऑब्जर्व कर, फिर क्वेश्चन जरूर सॉल्व करो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। सो डोंट फील ग्रेट, आपने मैंने चैप्टर करा दिया कि आपको इनऑर्गेनिक आ गई ना। किताब खोलो, सबसे पहले और सबसे लास्ट में एनसीईआरटी पढ़ना और उनको प्रैक्टिस करिए। क्वेश्चन जब आएगा भूल जाएंगे तो यू आर नॉर्मल, कम बैक, रीड इट, अब्सॉर्ब इट। अब आप उसको याद करें या जैसे मर्जी दिमाग में रखें, अब मैं नहीं कहूंगा, बट फिर क्वेश्चन पे जाओ, तुम्हें क्वेश्चन आना चाहिए। ठीक है Okay, गुड़िया? sir. Okay, sir. सल्फर डाइऑक्साइड का जो ब्लीचिंग एक्शन है, इट इज ऑल्सो गोइंग टू बी अ ब्लीचिंग एक्शन। इज पहली बात पढ़ के बता। Temporary. पढ़ के बता। Reduction. ड्यू टू रिडक्शन। तो अगर एक गुलाब के फूल को, गुलाब का फूल आप रेडिश कलर का ले लीजिएगा, उसको SO2 के कंटेनर में रख देगा, वो रेड से हल्का पिंक हो जाएगा। अब उसका ढक्कन उठा दो, SO2 एस्केप कर जाएगी, वो अपना रंग वापस अटेन कर लेगा बेटा, याद Okay, रखना। sir. SO2 सल्फर, द डेटिव बॉन्ड ऐसे बना दे, या जैसे अरमान ने अभी कराया था ऐसे बना दे, इसके ऊपर पॉजिटिव, इसके ऊपर नेगेटिव, और एक छोड़ दे लॉन्ग पे। जब रेजोनेंस बनाएगा बेटिया, यहाँ पे और यहाँ पे बना दे, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव। रतन चले आगे। SO2 का अब Yes, इसका sir. और भी करवाता हूं, ये तुम्हारे लिए। An important thing, Ash, wines, right? वाइन की बॉटल को जब पैक किया जाता है, डॉली भैया वाइन की बोतल को कुछ हो गया संभाल लेना, तो उसमें सपोज यहां तक हमारे पास वाइन आ गई गुड़िया। वाइन के अंदर Okay, sir. बहुत सारी अनडाइजेस्टेड शुगर्स होती हैं, और ऑफ कोर्स उसमें वो एंजाइम जो कि यीस्ट आपने डाली होती है वो होती है। वाइन्स बाय डेफिनेशन आर नॉट मैच्योर्ड। अल्कोहल, इथेनॉल is going to be matured. So that is the reason कि हम वाइन की बोतल को जब भी खोलेंगे तो हमें उसको विद इन
हमारे जैसे देश में 24 आवर्स में आपको उसको खत्म करना होगा, क्योंकि अगर आप इसको खोल देंगे तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, तो ये वापस फर्मेंटेशन स्टार्ट कर जाएगी। तो जब इसको स्टोर करते हैं ना, तो इसके अंदर SO2 गैस पैक कर देते हैं। SO2 is going to be a disinfectant and food preservative, so that is going to preserve it. अब आप जब भी उसको खोलेंगे, the SO2 is going to भाग जाएगी और उसकी फर्मेंटेशन दोबारा शुरू हो जाएगी। आपकी स्क्वैशेस के अंदर भी जहां पे हम कोई और चीज नहीं डाल सकते हैं, हम उसको SO2 से पैक करते हैं, एंड दैट इज द रीजन उसके ऊपर लिखा रहता है once you open it then you have to consume it within few days or few hours, whatever they have tested. चल सकता हूँ बेटे? Yes, sir. We are into an extremely important process. Sulfuric acid, manufacture of sulfuric acid, king of chemicals. Obviously, जो कंट्री इसको सबसे ज्यादा यूज करती है वो इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन कहलाती है, सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन कहलाती है। एक बार इसको देखो, nobody will ask you to draw it, but they can ask draw the flow sheet diagram. There you can just keep on drawing box and you have to discuss. The first is बेटे सल्फर बर्नर। इसमें इधर आयरन पाइराइट जो पीछे कहा था और सल्फर को बर्न करके SO2 बनाया जाता है। इसमें जो कैटलिस्ट है वो V2O5 है। कैटलिस्ट बहुत नखरीली चीजें होते हैं, उनको थोड़ा सा भी अगर आपने उसको पैम्पर करके नहीं रखा ना, वो नाराज हो जाता है, और कई बार तो वो ऐसा नाराज होता है कि वो मर जाता है, वो उठता ही नहीं है, कभी भी नहीं उठता है। और catalysts are definitely going to be costly, so we need to filter out the impurities from this SO2. That is going to consume my most of the cost and time for preparing sulfuric acid. So यहां से गुड़िया impure SO2 आगे बढ़ी। यहाँ पे हमने डस्ट प्रेसिपिटेटर, जैसे कि आपकी गाड़ी के अंदर फिल्टर होता है, वो जब बाहर से हवा लेता है तो वो जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो उसको वहीं पे रख लेता है, एयर को आगे जाने देता है इंजन की तरफ। सो ऐसे हम इसको पैक कर देंगे प्रॉपर एब्जॉर्बेंट से, वो डस्ट को अपने पास रख लेगा, ये वाला। अब अगले चैम्बर में सल्फर डाइऑक्साइड आगे बढ़ी, मिट्टी पीछे रह गई, उसके ऊपर पानी डाला जाता है। पानी डालने से जो सॉल्युबल इम्प्योरिटीज हैं वो बाहर आ जाती है। दिस इज नोन एज वॉशिंग एंड कूलिंग टावर। SO2 नहा के आगे बढ़ी, बट अब उसके अंदर मॉइस्चर है, उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड स्प्रे किया जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड एक हाइग्रोस्कोपिक एजेंट है, वो मॉइस्चर को अब्सॉर्ब करके बाहर ले जाता है। ड्राई SO2 साफ सुथरी होके आगे बढ़ रही है। यहाँ पे आर्सेनिक प्यूरिफायर आता है। आर्सेनिक प्यूरिफायर में हम जेलेटिनस फेरिक हाइड्रोक्साइड डालते हैं। हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड और फेरिक हाइड्रोक्साइड एक ही चीज है। वो आर्सेनिक को अपने ऊपर एडसॉर्ब करा लेता है। इम्प्योरिटी, पॉइजन निकल गया। अब SO2 को प्री हीट एक्टिवेशन एनर्जी दी जाती है। इस चैम्बर में SO2 प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट करके क्या बनाती है? SO3। नाउ SO3 गैस लास्ट चैम्बर में जाती है, वहां पे ऊपर से सल्फ्यूरिक एसिड की बरसात की जाती है और सल्फ्यूरिक एसिड कन्वर्ट होता है ओलियम में। ओलियम को डाइल्यूट करके हम कितनी भी कॉन्सेंट्रेशन सल्फ्यूरिक एसिड की बना सकते हैं। यू शुड बी आस्किंग, अगर मैं सिंपली SO3 को पानी में डालता तो भी मेरे को सल्फ्यूरिक एसिड मिलता। अगर मैं SO3 को H2SO4 में डालता तो
मुझे पहले ओलियम मिलता है। अब ओलियम में जब हम वाटर डालते हैं तो मुझे 2 मोल्स H2SO4 मिलते हैं। ध्यान से देखो, 1 मोल डाला, 1 वापस आ गया, तो प्रोसेस ए और प्रोसेस बी तो बराबर ही हुई। बट व्हाई वी डू नॉट use it? Because this reaction is highly exothermic और इससे सल्फ्यूरिक एसिड वेपराइज हो जाएगा और फॉग बना के सैर सपाटे के लिए इन्वायरमेंट में चले जाएगा। और सल्फ्यूरिक एसिड is a very powerful acid. You will not like to inhale or like to have this in your atmosphere. This is going to be the worst pollutant you can imagine. हम तो SO3 से ही इतने तंग हैं, SO2, CO2 से इतने तंग हैं कि अगर वहां पे सल्फ्यूरिक एसिड हो जाएगा तो वहां पे कोई प्लांट या कोई एनिमल वहां पे जिंदा नहीं रह पाएगा, इंक्लूडिंग अस। सो डू यू अंडरस्टैंड गुड़िया क्या हुआ? That is the heart of sulfuric acid. बेदी सब ठीक है? The process is known as बेदी Yes. contact process. इसमें 3 steps होते हैं, पढ़ के बता। Burning of sulfur or sulfide ores to generate SO2. Conversion of SO2 to SO3 by reaction with oxygen in the presence of catalyst vanadium oxide. इसके और इसके बीच में प्यूरिफिकेशन उसने देना ठीक नहीं समझा, बिकॉज दैट इज नॉट अ केमिकल प्रोसेस, है ना? Okay. Absorption of SO3 in H2SO4 to give oleum. अब समझ आया ये वाली लाइन कहाँ पे आई? Okay, yes, sir. द सेकेंड में। बेदी स्कूल में अगर कहीं पे 5 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, सो दिस इज द प्लेस बेटिया। द की स्टेप in the manufacture of sulfuric acid is the oxidation of SO2. The reaction is exo, reversible, and forward reaction lead to decrease in volume. Therefore, low temperature and high pressure are required. Class 11th Lee-Shettigar principle. But the temperature should not be very low, otherwise activation energy will not be met and the reaction does not happen. In practice, the plant is operated at 2 bar and temperature of 720 Kelvin. The SO3 from catalytic converter is absorbed in concentrated sulfuric acid to produce oleum. The dilution of oleum with water gives H2SO4 of the desired concentration. ये आपका NCERT का क्वेश्चन भी है बच्चों। In industry, the 2 steps are carried out simultaneously to make process a continuous one and also reduce the cost. ओलियम को dilute करके आप बाहर मार्केट में भेज देंगे dilute H2O से, सो ये आपको देगा H2SO4 और इनमें से एक H2SO4 हम वापस ले आएंगे। That is, the sulfuric acid obtained is about 96 to 98% pure. This is known as the flow sheet diagram. आप इस प्रकार से भी बना सकते हैं, आपकी श्रद्धा है आप पिछले प्रकार से भी बना सकते हैं, बट इट्स एंटायरली जैसा बेदी ने पढ़ा, इसके 3 मेजर स्टेप हैं। आजकल हम पानी की वजह से, वो जो हमने फिल्टर डाला था उसकी वजह से हम इलेक्ट्रिकल डस्ट प्रेसिपिटेटर भी यूज कर रहे हैं, वो चार्ज पार्टिकल को जल्दी निकाल लेता है। ठीक है जी। प्रॉपर्टीज, इट्स अ कलरलेस, dense, oily liquid with a specific gravity 1.84. The acid freeze at 283 Kelvin, 10 डिग्री पे आके ये
फ्रीज कर जाता है, boils at very high temperature. It dissolves in water with the evolution of large quantity of heat. ये इतनी ज्यादा हो जाती है कि एसिड की स्पिलेज हो जाती है. अब सल्फ्यूरिक एसिड किसी भी लकड़ी के ऊपर, कपड़े के ऊपर अगर पड़े तो उसको माफ नहीं करेगा. Hence, care must be taken while preparing sulfuric acid from concentrated sulfuric acid. आप concentrated acid must be added slowly into water with constant stirring. Right? तो आपके पास नीचे वाटर रखना है, ऊपर से एसिड डालना है. नेवर डू द उल्टा. सल्फ्यूरिक एसिड नीचे और अगर आप वाटर डालेंगे, यहाँ पे स्पिलेज पक्की है. Why? सल्फ्यूरिक एसिड की डेंसिटी ज्यादा है, so it is a thick viscous liquid. तो हीट डिस्पर्स नहीं होगी. हीट डिस्पर्स नहीं होगी, जहां पे पानी के साथ वो कांटेक्ट में आया है वहां पे बॉइलिंग हो जाएगी और उसकी छींटे बाहर गिरेंगे. डोंट थिंक ऑफ दैट. ये चीजें किताबों में अच्छी लगती हैं, बट we being a chemist, we have seen all this mishaps happening in front of us. So never to be tried. Natasha, कैसा है? The chemical reaction of sulfuric acid are result of low volatility. ये भाप बन के बड़ी आसानी से नहीं उड़ता बिटिया. उसने बोला 611 केल्विन पे जाके बॉईल करता है. Very strong acid, strong affinity for water. आप लकड़ी के ऊपर भी इसको डालेंगे, लकड़ी को कार्बन बना देगा. Ability to act as oxidizing agent. It's a very powerful oxidizing agent. Very, very powerful oxidizing agent. See, in aqueous solution, it ionizes in 2 steps. Natasha, सुन पा रहा है? पहला Yes, sir. प्रोटॉन लूज किया. अब नताशा जब पहला प्रोटॉन लूज किया तो HSO4 के ऊपर चार्ज क्या आ गया? नेगेटिव. तो इसमें से गुड़िया लॉस ऑफ प्रोटॉन क्या हो जाएगा? डिफिकल्ट. यस सर. Therefore, जब सेकंड प्रोटॉन निकालने की कोशिश करेगा, देख Ka2 अगर पहला 10 था तो अब वो 1/100 तकरीबन 1000 टाइम्स कम हो गया. The larger value of Ka1 means sulfuric acid is largely dissociated into one proton and HSO4 negative. Therefore, गुड़िया, अगर आप नॉर्मली इसके ऊपर NaOH डालेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है बहन? सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट. Sodium hydrogen sulfate is known as which salt? Acidic salt, because it can give you a proton. अब अगर आप इसके ऊपर NaOH डालेंगे तो ये मुश्किल से क्या बनाएगा? Na2SO4. This is known as which गुड़िया? Normal salt. सॉल्ट. The acid form 2 types of salt. Normal salt, sodium sulfate and copper sulfate. Copper hydroxide से copper sulfate मिल जाएगा. And acid salt NaHSO4 बनाता हुआ पाया गया है. ठीक बच्चों? यस सर. Sulfuric acid, because of its low volatility, can be used to manufacture more volatile acid from their corresponding salts. अरमान, अनम्यूट हो जाओ. अरमान, अगर आप NaCl के ऊपर सल्फ्यूरिक एसिड डालो तो तुम्हें मिल जाएगा HCl और साथ में क्या मिल जाएगा? Na2SO4. अगर आप KF के ऊपर H2SO4 डालो तो आपको मिल जाएगा HF, साथ में क्या मिल जाएगा अरमान सिंह? K2SO4. K2SO4. अगर आप
NaNO3 के ऊपर सल्फ्यूरिक एसिड डालो, आपको क्या मिल जाएगा बताइए? HNO3 Na2SO4। गुड, याद रहेगा। ठीक है सर। अब अरमान एक चीज बताए यार, HF, HCl, HBr, HI नीचे जाते हुए रिड्यूसिंग करेक्टर इंक्रीज करता है कि डिक्रीज करता है? सर Others can try. हाँ भाई, अरे दोस्तों इतना हाइड्राइड्स के ऊपर लेक्चर दे दिया। Reducing character increases. The reducing ओके character increases. Therefore, NaBr plus H2SO4, HBr plus Na2SO4 बनाएगा। यस सर। The HBr, it's a powerful reducing agent, will react with H2SO4, बचा ही होगा ऑक्सीडाइजिंग एसिड के साथ, वापस बना के दे देगा the Br2 plus water plus SO2, that is HBr नहीं बनेगा। Hence we use H3PO4 for preparation of HBr. Phosphoric acid is not an oxidizing acid. तो अगर आप HBr के ऊपर एक मिनट अभी ठीक करो, NaBr के ऊपर राइट, अगर आप फॉस्फोरिक एसिड यूज करते हैं आपको मिल जाएगा HBr NaH2PO4. HBr will not react further with phosphoric acid. आज इंपॉर्टेंट चीज चल रही है सर। पहले रिएक्शन में कुछ और होगा क्या आगे? किसमें? पहले HBr बनेगा, रिएक्शन HBr बनेगा। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि वेयर आप क्लोराइड और फ्लोराइड के ऊपर सल्फ्यूरिक एसिड डाल के HCl और HF बना सकते हो, आप ब्रोमाइड और आयोडाइड के ऊपर सल्फ्यूरिक एसिड डाल के HBr और HI नहीं बना सकते हो। ये चीज जो तुम सुनोगे इसको रिकॉर्डिंग में लेना, नोट डाउन करना। अर्शी समझा मैंने क्या बोला? यस अर्श? यस सर, क्योंकि वो पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट्स है इसीलिए वो आगे फर्दर रिएक्ट कर जाएंगे H2SO4 के साथ, तो हम H2SO4 की जगह H3PO4 यूज करेंगे इनके साथ। हाँ बेटे, इसको लिख लेना बेटे, ये आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अल्कोहल्स के रिएक्शन के नीचे भी करा चुका हूँ बेटा। एल्काइल हैलाइड्स में भी हम कर रहे थे कि H2SO4 नहीं यूज। हाँ, इट्स अ स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट, यू विल रीड इट। ये शुगर की चारिंग कर देता है, उसको बिल्कुल काला कर देता है। आप लोगों को बाय चांस मिला नहीं इस साल आपको लेबोरेटरी जाने का सौभाग्य, मैंने भी अच्छी हिंदी यूज की इससे सीख के अरमान से, तो अदरवाइज आप ये काम नॉर्मली करते। सॉरी, हॉट concentrated sulfuric acid is a moderately strong oxidizing agent. In this respect, it is intermediate between phosphoric and nitric acid. पढ़ के बताया शेर खान? Oxidizing action increases, right?
तो तुम लोगों में से कोई जगराते में गया है? हावी, बेदी, अरमान, एमी, अर्श, दमन, कार्तिक, नंदनी, नताशा, कोई जगराता देखा है? जागरण? श्रेया, सैनी, युवांश, प्रथम, पर्ल, नहमत, कभी जागरण नहीं देखा तुम Yes, लोगों ने? sir. Yes, sir. जागरण देखा। तो किस समय होता है पर्ल जगराता, रात को कि दिन को? रात को रात को। तो रात को लोग सोते हैं कि जागते हैं? जागते हैं। नहीं, वैसे नॉर्मली सोते हैं ना। Yes, sir. तो वो जो जगराते वाले होते हैं ना, वो ना उनको नींद आ जाती है कभी कभी, तो वो फिर क्या नारा लगाते हैं, जोर से बोलो, है ना, जय माता की। याद आ रहा है तेरे Yes, को? sir. Yes, sir. तो महान आत्माओं, हम कोई जागरण में नहीं आए हैं, तुम यहाँ पे मत सो। ये जो बाकी लोग आराम से कंबल लेके टोपी लेके वो बैठे हुए हैं ना कि हाय सर्दी आ गई है ना, आराम से बैठो, प्लीज गेट अप, राइट? यार मतलब तुम लोग समझते नहीं हो। तुम लोग को एक मैसेज दिखाता हूँ, राइट? शायद तुम पढ़ पाओगे, राइट? तो आर यू एबल टू सी ए मैसेज? पढ़ पा रहा पर? No, sir. सर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी कैसी है? नहीं दिख रहा सर। चल कोई बात नहीं, एक बच्चे का मैसेज है आज के सब दिख दिन रहा का। है, सब दिख रहा है। तो इसमें लिखा है सर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी कैसी है, ठीक है जी, राइट? ये बच्चे पिछले साल के कुछ बच्चे हैं, सो तुम्हारे जैसे ही पास कर गए। तो नॉर्मली टीचर्स और पेरेंट्स तो वैसे ही रहेंगे ना। तुम्हारा बड़ा भाई था, बड़ी बहन था, तो युवांश उनको भी बोलते थे, वो तुम्हें भी बोलते होंगे युवांश। हालांकि हम सोचते हैं कि माँ बाप को कुछ पता नहीं है, हम ज्यादा स्मार्ट है, तो हम इन लोगों को बोलते हैं कि यार पढ़ लो, दिस इज द राइट टाइम, यू शुड रीड इट। तब ये पता है क्या करते हैं, अपनी दुनिया में रहते हैं। अब जब रिजल्ट आता है, so they are getting admission in the most useless universities where you will not like to go, or as a teacher I will say बेटे घर बैठ ले, दुकान खोल ले करियाने की, इनसे अच्छा इंजीनियरिंग या इनसे अच्छा मेडिकल करने के बगैर। बट अब और कहीं एडमिशन नहीं मिलेगा, और अभी ये 10-20 लाख रुपया इनके ऊपर खर्च करने के लिए तैयार है। एंड दीज आर जस्ट कॉलिंग देम, आओ एडमिशन ले लो, हम आपको स्कॉलरशिप दे देंगे, राइट? ना उनके पास टीचर है, अगर टीचर है ना उनकी वो सैलरी दे पा रहे हैं। यू कैन अंडरस्टैंड द स्टैंडर्ड्स व्हाट इज गोइंग टू हैपन। माय डियर फ्रेंड्स, कम ऑन, माइक को यूज करो, थोड़ा सा क्लास को इंटरेक्टिव बनाओ। आई गारंटी तुम 1 पैसे की चीज जानते होगे, मैं उसको 1000 की कर दूंगा। अगर सिर्फ मैं ही बोलता रहूंगा यार, तो ऑब्वियसली मैं कहूंगा तुम्हें कोई फायदा तो हो नहीं रहा, बिकॉज तुम सर्वज्ञानी हो। तुम वैसे ही सर्वज्ञानी हो ना, जैसे वो महात्मा लोग नीचे आते हैं। सो what can I tell? How can I tell? Right? So it is you who are responsible for कितना तुमने काम करना है। तो don't tell me कि आप लोगों को ये चीज आती है और ये चीज आपको बात करनी नहीं आती है। So, right? So I try to revise one thing. I'm telling you, अब अप्रोक्सीमेटली 1 या 2 को छोड़ के ये कॉन्सेप्ट नहीं आता था, राइट? 1 या 2 को छोड़ के। पर तुम्हें याद था ये कॉन्सेप्ट? No, sir. तो बेटे मैं जानता हूं, तो प्लीज बोलो, otherwise it becomes sleepy, really sleepy, because I'm teaching the walls. You people are say, आप लोग कहते हैं कि आप लोगों को बाहर जाके ऑफलाइन में ज्यादा इंटरेस्ट आता है। आई एम टेलिंग यू द बेस्ट स्टूडेंट, इस बार जो 720 का चमत्कार हुआ था आपके उसमें, दैट हैपेंड बिकॉज ऑफ द इंटरनेट, बिकॉज ऑफ दैट। सो प्लीज कम ahead. Both metals and non-metals are oxidized by concentrated sulfuric acid, which is going to be reduced. देखो, copper goes to sulfuric acid, copper sulfuric acid के साथ copper sulfate SO2, सल्फर 0 से आज चली जाएगी +4 पे, कार्बन 0 से चल जाएगी गुड़िया किस पे ऊपर, +4 के ऊपर। Sulfuric acid is a dehydrating agent. You please read it yourself. Okay, Okay. sir.
ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा अर्श, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। मुझे लगा अर्श मैं ये आपको पहले करा चुका हूं, है ना? ये शीट आपको याद है बेटा? यस सर। तो कोशिश करो, बात करते हैं कि बेटा फायदा होगा। तो अर्श हम एक इंपॉर्टेंट चीज में से निकल रहे हैं। तो दिस इज गोइंग टू बी द ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो एक सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा बेटे, यस सर। सल्फर डबल बॉन्ड O, OH। OH। अब OH कुछ कारण है बेटे, इसको इधर लगा देता हूं, और डबल बॉन्ड O। OH। ठीक है जी। देख, सिर्फ आपको याद कराने का तरीका है, इसमें OH की जगह पे यहां पे क्या लगा दे? सल्फर। दिस इज नोन एज H2S2O3, thiO sulfuric acid, ऐसे abbreviated for sulfuric acid। ओके सर। राइट डॉली, 2 सल्फ्यूरिक एसिड पकड़, उसमें से ऑक्सीजन निकाल दे। तो एक सेकंड, मैं जानता हूं मैं क्या कर रहा हूं, एक मिनट बेटा। ये इधर भी OH था, इधर भी OH था, समझा? इसमें से वाटर निकाल दो तो क्या यस रह सर। गया? ऑक्सीजन रह गया। दिस यस सर। इज H2S2O7। सोडियम। इसको बोलते हैं ओलियम, इसको बोलते हैं पायरो सल्फ्यूरिक एसिड, इसको बोलते हैं डाई सल्फ्यूरिक एसिड, इसको बोलते हैं फ्यूमिंग। वेरी गुड। अब इसके बीच में से एक ऑक्सीजन निकाल दे, तो बीच में से एक ऑक्सीजन लगा दे। इट इज OH, दिस इज डबल बॉन्ड O, सल्फर, OH डबल बॉन्ड O, दिस इज क्या है? H2S2O6। इसका नाम है डाईथायोनिक एसिड, द ओके। डाईथायोनिक एसिड। डोंट फॉरगेट इट, रियली इंपॉर्टेंट है। तो अगले पेज पे चलते हैं। तुमने एक मिनट, अभी सल्फ्यूरिक एसिड बनाया, दिस इज डबल बॉन्ड O, दिस इज OH, है ना? इसमें यस सर। एक ऑक्सीजन डाल दो। सो दिस इज गोइंग टू बी H2S2, गलती कर गया, वेट। H2SO5। इसका नाम नंदनी परऑक्सो मोनो सल्फ्यूरिक एसिड, और इसको गुड़िया क्या बोलते हैं? कैरोस एसिड। दोबारा देखो अर्श, अभी थोड़े समय पहले तुमने ओलियम बनाया था, दिस इज ओलियम था, राइट? इसमें सेंटर में एक ऑक्सीजन और डाल दें, दिस इज नॉन एज पर मार्शल। वेरी गुड, डाई सल्फ्यूरिक एसिड, दिस इज नॉन एज मार्शल एसिड, राइट? H2S2O8 इसको बोला जाता है, द मार्शल्स एसिड। We have one more sulfurous acid, sulfur, OH डबल बॉन्ड O, देखो H2 हो गया, एक ऑक्सीजन बची है लोन पे। ना, गड़बड़ कर गया ना मैं? ये ठीक बनाया लोन पे। ना, लोन पेयर ठीक था बट हाइड्रोजन कम थे। So they will ask Yes. which of the following has the lone pair, which of the following has सल्फ्यूरस एसिड। इस पेज पे इसको A बोलूंगा। अब रतन इसको दोबारा इमेजिन कर, OH, कोई कारण है बेटिया? अभी बनाता हूं। OH, इसका OH, इसका OH,
दोनों में से पकड़ के एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल दो। रतन ये क्या आ रहा है? H2SO5 पायरोसल्फ्यूरस एसिड। इस वक्त ऐसे को सल्फ्यूरस एसिड बोल रहा हूं। ओके सर इसके बीच में से डॉली एक ऑक्सीजन निकाल दे। पीछे डाइथायोनस बोला था, अब की बार क्या बोलेगा? डाइथायोनस एसिड। The questions are definitely going to be asked, and he will be asking question that which of the following is going to have sulfur, which of the following is going to have sulfur, oxygen-like structure. You will be Okay, going through that. ये आपका homework रहेगा. Everything I'm writing is important. ठीक? एक तुम्हें just motivate करने के लिए कि तुम क्या कर सकते हो, क्या लूज कर सकते हो। ये देखो SO3 का स्ट्रक्चर। SO3 सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करती है लीनियर चेन में, और सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करती है व्हाट? साइक्लिक ट्राइमर में। सल्फर ऑक्सीजन सल्फर। ठीक। सेलेनियम डाइऑक्साइड गैस और सॉलिड स्टेट में, SeO3 गैस, और द साइक्लिक स्टेट में, सॉलिड स्टेट में it exists as tetramer. Today you will see to it how many questions are going to be asked जो मैंने पिछली क्लास में आपको कराए थे। ध्यान से देख लो, आंसर सबके हैं, आंसर सबके हैं। कुछ याद आ रहा है कि पिछले सब यही कर रहे थे हम? मैंने सारे क्वेश्चंस को एक जगह पे इकट्ठा किया है, तो you are going to go through all of them. नंदनी रतन कर लेगा? Oxo acids of sulfur and so yes on. sir. So you people will discuss अगली क्लास में ग्रुप 17 और ग्रुप 18 की तरफ जाने वाले हैं। We will not go beyond that. ग्रुप 17 आज नहीं शुरू करेंगे, because you know it के वो एक फ्रेश दिन पे ही शुरू होगा बेटा। Please refer everything which I have taught you here. चलो जी, any questions to ask? Anything to ask बच्चों? कोई बात नहीं, चलो, good luck. No sir. Bye. Thank you, Thank you sir. Bye बेटिया, take care. थैंक यू सर। Thank you, sir.